Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB, and today in this session we will see some important questions for your upcoming exams for English section, right, particularly. Now friends, we are holding these sessions every day at 4 p.m. On our channel for you, and these are absolutely free and they will help you crack the exams of all the banking and regulatory bodies, because English section appears in almost all the exams, right? And through these sessions we will solve questions, and also, like in the previous sessions, we discussed some previous year question papers, right? And now we will see some important questions, and with the help of those questions we will see and understand some concepts, that if we are able to remember, which we must, then we will be able to apply if the same concepts or the rule or the technique, it comes in our exam, in the real exam as well, right? So it is very essential that you attend today's session, because today we will be discussing some important English questions. And take care of this one thing, that there are when we particularly talk about banking exams, and also now even in regulatory bodies, we are seeing some new pattern questions, right? So those having a knowledge of those new pattern questions is also very important, but equally important is knowing the concepts, right? So first, if you know the concepts and then you know the pattern, then you are in a safe position, right, to attempt English section, right? So here first we'll see the concepts, okay, in the form of questions only, and then later on in the end we have some new pattern questions, right? So stay with us till the end so that you're able to see what these new pattern questions are, and especially of error detection. Now I have a separate video about this, about several patterns of error detection. I've discussed around 10 patterns of error detection in that video, and similarly I have some patterns of fill in the blanks also, right? There are around 9 to 10 patterns of fill in the blanks that we have seen. These are not created by us, ऐसा नहीं है, because sometimes people create their own pattern, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, but these are those 9-10 patterns which we have definitely seen in exams. Okay, so these have come previously. Okay, so it is very very important for you to know कि एग्जाम में पहले क्या आया हुआ है, उसी के बेसिस पे आप अपनी आगे की तैयारी करेंगे, राइट? एंड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. बहुत स्टूडेंट्स होते हैं, उन लोगों को मतलब पता ही नहीं होता है कि हर क्वेश्चन कितने मार्क का है. कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि आपके हर एग्जाम में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे. कभी कभी होता है कि 35 क्वेश्चन है आपके 50 मार्क्स के. स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि ईच क्वेश्चन हैज इक्वल वेटेज, कि कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के हैं और कुछ 2 मार्क के हैं, ऐसा भी होता है. सो दिस इज मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी एग्जाम इज इक्वली इंपॉर्टेंट विद द नॉलेज ऑफ द कंटेंट. तो आपको एग्जाम अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. नॉलेज आपको यहाँ कॉन्सेप्ट से मिल जाएगी और पैटर्न से आपको पता चलेगा द नॉलेज ऑफ द एग्जाम, राइट? उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, इन दोनों को मिला के आपको पूरे एग्जाम का पता चलता है, राइट? सो इस चीज का आप बिल्कुल अवेयर रहें कि आप चाहे कहीं से भी यहाँ पे जैसे हम बता रहे हैं, कहीं से भी जस्ट फाइंड आउट अ वे कि आप इनफैक्ट iexamb.com पे सारे प्रीवियस इयर्स आपको के पेपर्स आपको फ्री में मिलेंगे. तो आप जस्ट गो टू द वेबसाइट और प्रीवियस ईयर पेपर्स पे जाकर आप क्लिक करेंगे और एग्जाम ढूंढें, कौन सा एग्जाम, उसमें वैसा का वैसे ही पेपर है जैसा आपके रियल एग्जाम में उस साल आया था. सो डेफिनेटली इसको अगर आप अटेंड करेंगे, इसको अटेम्प्ट करो, और उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी दैट किस तरह का पैटर्न आता है, राइट? तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन. Now friends, this is our zero say PO series. We are teaching all the main concepts, all the important concepts, and sometimes even the basics if we are if we get that in the question, तो हमें वो बेसिक्स भी सीखने को मिलते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें. सो ये सेशंस आप जरूर अटेंड करें. सब क्वांट के लिए होता है, इंग्लिश, रीजनिंग, तो आप इनको जरूर अटेंड करें. और
इससे आपको एटलीस्ट एक घंटे में आपको कुछ तो सीखने को मिलेगा ही, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चंस। ये आपका क्वेश्चन है, इट सेज, ये एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का या कोई लोग सेंटेंस करेक्शन बोलते हैं, इनका क्वेश्चन है। और इसमें हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि जो हाईलाइटेड पार्ट है वो करेक्ट है कि नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द क्लियर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसीज have been the regular conduct of elections and the relatively high participation of electors in the voting process, right? तो यहाँ क्या है highlighted, the clear success of democracies have been, right? पर इससे पहले क्या लगा है, one of, इसका क्या रूल ऑफ ग्रामर है, क्लियर कट रूल है। ये मैं अपनी क्लास में एटलीस्ट ऑलमोस्ट रोज मैं इसका एग्जाम्पल इंट्रोड्यूस करती हूँ, बिकॉज ये एग्जाम में आते हैं जो आपके सर्टेन रूल्स होते हैं जिसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, कॉन्क्रीट रूल्स हैं ये, चाहे आप किसी भी जगह इसको यूज करें ये एकदम सेम ऐसे ही रहेगा रूल। सो दैट इज कि अगर आप वन ऑफ के साथ, एक तो वन ऑफ द के साथ जो भी नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहा है वो हमेशा प्लूरल होगा। सो इट विल बी वन ऑफ द क्लियर सक्सेसेस ऑफ डेमोक्रेसीज। अब ये क्या है, हैव बीन होना चाहिए कि हैज बीन होना चाहिए, ये भी हमें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्योंकि ये जो वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अगर हम देखें तो ये जो वर्ब है इसके लिए सब्जेक्ट क्या है, वन ऑफ, ओके। और जब वन ऑफ सब्जेक्ट होता है तो सो वन ऑफ जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए क्या यूज होगा, हैव नहीं यूज होगा, वी विल यूज हैज। सो वन ऑफ द क्लियर सक्सेसेस ऑफ द डेमोक्रेसीज हैज बीन, ये यहाँ है आपका ऑप्शन 4। ऑलराइट, सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वी शुड नो द रूल्स, ऑलराइट। Next is, but I, you and our mother should all have very clearly defined contours of our involvement in the functioning of the organization, right? तो इसमें 3 लोगों की बात हो रही है, right? I, you, my mother. So यहाँ पे क्या है, 3 persons. Person मतलब first person, second person and third person. First person, second person, you second person होता है, और कोई भी जो थर्ड किसी और की बात हो रही है, हु इज नॉट प्रेजेंट, वो आपका थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी भी आ जाता है, ठीक है। सो अब जो ये इसका क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस होता है, राइट। ऐसे ही हमेशा कुछ भी नहीं बोल देते हैं, जैसे आई यू आर मदर आई यू, ऐसे नहीं बोलेंगे। देयर इज अ करेक्ट सीक्वेंस एंड द करेक्ट सीक्वेंस इज 2 3 1, ओके। इसको आप याद रखें, 2 3 1, दिस मीन्स सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन, यानी कि यू आर मदर एंड आई। कहां पर है ये, ऑप्शन 2, यू आर मदर एंड आई, ठीक है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर हियर। तो ये फ्रेंड्स दिखने में लगता है छोटी छोटी चीजें हैं, आपको याद रखनी है, प्रैक्टिस करेंगे सो यू विल नॉट फॉरगेट देम, राइट। सो इस तरह आप ये ऑर्डर याद रखें, 2 3 1 का ऑर्डर होता है, कभी भी इस तरह यूज करा हुआ है तो, है ना। और छोटी छोटी चीजें हैं, याद रखेंगे, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जाम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, अ नॉन गांधी एट द हेल्म कैन बी अ गुड अटेम्प्ट टू एट रिबूटिंग द कांग्रेस, बट दैट बाय हिमसेल्फ इज नो गारंटी ऑफ देयर रिवाइवल। तो वो क्या कह रहे हैं, बट दैट मतलब, अब आप सिर्फ हम इस चीज को देखेंगे और देखेंगे कि कौन सा प्रोनाउन या वर्ब जो है वो सब करेक्टली यूज है कि नहीं है। पहले क्या रूल होता है आपका, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रूल है, एंड इट सेज कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आपका वर्ब होना चाहिए, और जो आपका सब्जेक्ट में अगर नाउन है तो उसके अकॉर्डिंग आपका प्रोनाउन होना चाहिए, right? Your verb should always agree with the subject and your pronoun should always agree with the antecedent, okay? अब चाहे वो आपका नाउन है सब्जेक्ट में, okay? चाहे कुछ और जिस भी तरह से यूज हो रहा है, दोनों में अग्रीमेंट होनी चाहिए, राइट? आप यहाँ पे देखें क्या कह रहे हैं, a non Gandhi at the helm can be a good attempt at rebooting the Congress, but that by himself, अब himself किसके लिए कह रहे हैं, ये himself is incorrect usage because that by
ये किसको वापस पॉइंट बैक कर रहा है, दिस हिमसेल्फ, इट इज दिस एक्शन, राइट, दिस जो नॉन गांधी एट द हेल्म, ये जो एक्शन है इसको पॉइंट कर रहा है। तो एक्शन हिम तो नहीं होगा, राइट, एक्शन क्या होगा, इट सेल्फ होगा, एक्शन इज इट। हिम तो कोई मेल पर्सन होना चाहिए, ओके, हिम इज ऑलवेज, अब आप बोलो ह्यूमन के लिए, नो, उसके अभी स्पेसिफिक है मेल ह्यूमन, ठीक है, मेल पर्सन के लिए हिम यूज होगा और फीमेल के लिए हर यूज होगा, ये हमें पता है, राइट, बट बिकॉज दिस इज द एक्शन तो वहां के लिए इट सेल्फ यूज होगा, राइट। सो दैट इट सेल्फ इज नो गारंटी ऑफ देयर रिवाइवल। देयर क्या है, देयर इज पॉइंटिंग टू कांग्रेस, राइट, बट कांग्रेस अगेन इट इज अ पार्टी, तो क्या होगा, इट, सो इट्स रिवाइवल, ओके। सो यहाँ पे हिमसेल्फ की जगह इट सेल्फ, बट दैट बाय इट सेल्फ कहां पे आ रहा है, दोनों जगह, इज नो गारंटी ऑफ देयर नहीं होना चाहिए, इट्स रिवाइवल। करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 4, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, विद द इंक्रीज इन द स्कूल एजुकेटेड पॉपुलेशन एंड मोस्ट इंडियन सिटीजन्स लिविंग इन हाउसेज whose address is to be mentioned in several identity document, registering to vote is a relatively easy process। तो यहाँ क्या, किस चीज की बात हो रही है, जहां आप अगर देखें हाईलाइट क्या है, whose address is to be mentioned in several identity document। अब several बोल दिया तो मतलब many है, मोर देन वन है, तो डॉक्यूमेंट गलत है, इट शुड बी डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स तो चारों में दे दिया है, ठीक है। अब कहाँ गलत है, यहाँ गलत है, विद द इंक्रीज इन द स्कूल एजुकेटेड पॉपुलेशन एंड मोस्ट इंडियन सिटीजन लिविंग इन हाउसेज हुज एड्रेस। अब किसकी बात हो रही है, बात हो रही है उन हाउसेस की जहां पर जिनके एड्रेस, राइट, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हुज, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, राइट, मोस्ट इंडियंस लिविंग इन हाउसेस, इनका एड्रेस क्या होगा, फिर एड्रेसेस होगा, राइट, इस चीज का ध्यान रखें। और हुज जो है इट इज करेक्ट, इस हुज का क्या मतलब है, हुज WHOSE एंड WH, इसका क्या मतलब है, मतलब कि हु इज, ठीक है, हु इज, और ये क्या है, हुज मतलब जिनका, जिनका या जिनके, ठीक है, हिंदी में बोले जिनका जिनके, और हुज जो है, यहाँ हु इज मतलब जो है, तो यहाँ पे हुज जो है वो करेक्ट है, ठीक है, बट यहाँ क्योंकि बहुत सारे हाउसेज और बहुत सारे सिटीजन्स की बात हो रही है, इट शुड बी एड्रेसेस, whose addresses are to be, sorry, this one, addresses are to be mentioned in several identity documents, so option 3 is the correct answer here, all right, तो हम मार्क कर देंगे option 3, all right। आगे चलें, ये कह रहा है, the court ruled that the state government of Gujarat where the crime occurred should consider the matter and not Maharashtra, the state for whom the trial was transferred by the Supreme Court, right। So सबसे पहले तो for whom जहां पे बोला है, यहाँ पर for whom, so that is not correct, क्योंकि यहाँ क्या बात हो रही है, where the crime occurred should consider the matter and not Maharashtra, the state to whom, okay, अब यहाँ जब ट्रांसफर की बात हो रही है तो ट्रांसफर टू हुआ है और whom नहीं आएगा, whom क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इट स्टेट क्या है, अगेन नॉन लिविंग, ठीक है, तो टू विच आएगा, टू विच द ट्रायल वॉज ट्रांसफर्ड by the Supreme Court, ठीक है, so to which the trial was transferred by the Supreme Court, option 2 हमारा सही आंसर है, ठीक है। सो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि हमें सेंटेंस को अंडरस्टैंड भी करना है। तो यहाँ क्या बोला गया है, कोर्ट ने रूल किया कि स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात जो है जहां पे क्राइम हुआ उनको मैटर कंसिडर करना चाहिए, ना ही कि महाराष्ट्र को, वो वाली स्टेट जो जिसको ट्रायल ट्रांसफर किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर इन दैट केस 2 आएगा, क्योंकि केस ट्रांसफर हुआ है तो महाराष्ट्र में ट्रांसफर हुआ है, अदरवाइज इस सेंटेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, ठीक है, कि कहाँ किसी स्टेट के लिए नहीं ट्रांसफर करेंगे, राइट, तो या तो किसी स्टेट से करेंगे या किसी स्टेट को करेंगे ट्रांसफर, राइट, तो कोर्ट कोई फेवर नहीं करेगा किसी स्टेट को, ऑलराइट। सो यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, ओके।
Now moving ahead, it says Prime Minister Narendra Modi recently announced that 5G deployment in India will commence much soon than expected, right? So इसमें अगर हम बोलें, किसी को लगे कि ठीक है much sooner आ जाएगा तो वो correct हो जाएगा, but no, it is not right, क्योंकि अगर much आ गया तो much sooner will not make sense, it will be incorrect, right? Because आप कभी भी जब आप sooner अगर आपने लगा दिया, हाँ, और much मतलब उससे ज्यादा या जो भी कंपैरिजन हो जाएगा मच से, एक कंपैरिजन आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं सूनर, ठीक है, तो मच सूनर जो है डबल कंपैरिजन हो जाएगा, सो दैट विल बी इनकरेक्ट. आप केवल सूनर यूज करेंगे. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर हियर. ये आप हमेशा याद रखें, कभी भी आप कंपैरेटिव स्पेशली तो आप हम कभी भी रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए कभी भी कंपैरेटिव्स यूज करते हुए. जैसे कि कंपैरेटिव्स यूज करते हुए, जैसे कि अगर हम बोले जैसे यहाँ पे था मच सून या मोर टॉलर, मोर टॉलर ऐसे नहीं बोलेंगे, राइट? आइदर वील से मोर टॉल या हम बोलेंगे टॉलर, ठीक है. अब ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है कब मोर टॉल और कब टॉलर यूज करते हैं. दिस इज ऑल्सो वन, ये हमने बहुत बारी आई डिस्कस इन क्लास ऑल्सो, आई डिस्कस इन यूट्यूब वीडियोज ऑल्सो. तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि मोर हेल्दी, हेल्दियर कब कब यूज होगा, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक ये चीज है रिडंडेंसी. कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं इज मोस्ट यूनिक, वो गलत है. कभी हमने बोल दिया इज मोस्ट यूनिक, वो दैट इज रॉन्ग. ओके, सो मोस्ट जब यूनिक हो गया तो मतलब वो एक ही है, मैक्सिमम यही है. इस पे अगर हम दोबारा, दिस इज सुपरलेटिव डिग्री, हाँ, अगर हमने सुपरलेटिव के साथ एक और सुपरलेटिव लगा देंगे तो वो रिडंडेंट हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं लगाते हैं. ऐसे ही एक्सट्रीम, मोस्ट एक्सट्रीम मेजर ऐसे नहीं बोलेंगे, एक्सट्रीम, ठीक है, मोस्ट नहीं लगेगा इन सब के आगे. तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है आपको, रिडंडेंसी नहीं होनी चाहिए व्हेनेवर यू आर यूजिंग कंपैरेटिव्स या सुपरलेटिव्स. ओके, नेक्स्ट आ गए हम. द इंक्रीज स्टोरेज कैपेसिटी प्रॉमिस्ड बाय 5G will allow the committee to streamline their investigation methods. अब देखो, कमिटी अगर हम देखें, आप चाहें तो पॉज करके अगर आप रिकॉर्डेड वर्जन देख रहे हैं तो आप पॉज कर सकते हैं, अदरवाइज खुद भी अभी भी पॉज हो जाएगा. यू कैन पॉज एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. तो कमिटी क्या होता है, इज इट सिंगुलर और प्लूरल? अगर मैं आपसे पूछूं तो कमिटी कैन आइदर बी सिंगुलर एंड इट कैन आइदर और इट कैन बी प्लूरल. ओके, अब कब सिंगुलर होगा कब प्लूरल होगा? व्हेनेवर यू आर कंसिडरिंग कमिटी एज वन यूनिट, ठीक है, तब कमिटी सिंगुलर होता है, राइट? इट इज वन बॉडी, जैसे फैमिली होता है, ठीक है, कमिटी, फैमिली, ये क्या होते हैं? ये दे आर व्हेन दे आर कंसिडर्ड एज वन यूनिट तब आप उसको सिंगुलर कहते हैं. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द कमिटी तो वो प्लूरल की तरह एक्ट करता है, राइट? तो यहाँ पे क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है? अगेन फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी, उनके लिए मैं इंग्लिश में बोलूं, वर्ड्स लाइक कमिटी एंड फैमिली, दे आर व्हाट, they can either be used in the singular form or in the plural form. Now their form will be decided by their usage, right? That if the committee refers to the entire one unit, entire committee, then you will consider it to be singular, right? But when we are talking about individual members of the committee, then it will be considered as plural, because each action of each member will be accounted for then, and then that will be considered plural in that case. Okay, so take care of this usage of such words. Okay, so now here when we are talking about here the investigation methods will be taken up by what? By the entire committee, right? Individual members will not take these investigation methods, right? So committee here will be considered as singular. Okay, because entire whole committee is will be taking the investigation method, so it should be singular. So there is incorrect here, it should be its. Okay, its is the correct answer here. So should be
will allow the committee to streamline, so committee is only in these two, streamline its investigation methods, right? Option 3 is the correct answer here. चलिए आगे, Congress coming to power is more important than him becoming the chief minister. Okay, so is it right when you say than him becoming the chief minister or than he becoming the chief minister? So it should be him, because whenever, you know, when there is a pronoun, immediately after than or as. Now this is a rule. Keep note of this rule. After than or as, okay, whenever there is a pronoun, like here it is what, like here it is him. So whenever there is a pronoun, it has to be used. Always, you know, you have to use it in objective case. Objective means him, her, okay. Objective case, not in the nominative case. Nominative is what? He, she, they. No, you do not use nominative case, you use objective case. When do you use nominative case? After than or as. After than or as, nominative case will only be used when you know, there is a verb after it. When there is a verb, then you will always use the objective case. Otherwise you will use the nominative case. All right, so here when we see here, it says than him becoming the chief minister is correct. Then you will use option 5 here. This is because this is the correct sentence. All right, so 5 is the correct answer here. Now we see here, it says Queen Elizabeth's office dismissed the suggestion that there was any irritation at the palace over Harry's and Meghan's visit. Right? So what happens is when whenever, you know, whenever there is a noun and then there are possessive nouns, then this joint possession is indicated, because, you know, if the visit is, whose visit is? Harry and Meghan. They are two people's visit, right? So the apostrophe s comes only after the second noun, okay, because this entire thing is composite. You know, it is a composite noun, and you call it as a component, and they are all being used together. Then Harry and Meghan, instead of individually they having apostrophe s, only Meghan will have apostrophe s, right? Because then Harry and Meghan are used together. It is about their visit, okay. Similarly, when you use king and queen, you will use king and queen's approval, okay, like this. Okay, so you have to take care whenever there are error detection questions. You have to ignore the error of punctuations unless it is punctuations, unless it is what? Apostrophe. Apostrophe you always take care of. Apart from this, you ignore the errors of punctuation. So apostrophe, we have several rules, like when we say there are many fives, you say fives. They are not, you won't say there are many fives. This is the plural form of many fives, okay. So take care of this. Apostrophe, with apostrophe also we have certain many rules that, you know, we take around 15-20 minutes to discuss the rules and another 40 minutes to discuss the questions based on those rules in the class. So you also be aware that there are so many rules regarding apostrophe, and you must know them. You should not ignore apostrophes in your error detection question, right? So here the correct answer will be at the palace over Harry and Meghan's visit, okay. So option 3 is the correct answer here. Now here it says a 3-member gang of pickpockets. Now this is okay, this is improvement. Who targeted? Now who is pointing to what? Who is pointing to the gang? 3-member gang, okay. So gang should be what? It is singular and yeah. So gang is singular. So yes, you can use who for 3-member gang of pickpockets, right? Now since it is singular, now we'll see who targeted bus passengers and stole valuables were arrested. Were क्या है? Were is plural. But
अब इसको आप ये नहीं सोचेंगे कि ये 3 मेंबर पे पॉइंट कर रहा है, ये 3 मेंबर की गैंग को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। सो वर की जगह यहाँ पे क्या आएगा, वॉज अरेस्टेड। सो वॉज इज द करेक्ट यूसेज एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन, टेल मी वेयर इट इज, who targeted RTC bus passengers and stole valuables was arrested. Option 2 is the correct answer. Okay. Now we will see error detection question. Now this is the conventional pattern, and we get conventional pattern mostly in our prelims exams of bank and other regulatory bodies. But in the mains exams we get error detection questions in different patterns, right? So that pattern we will discuss in some time, and but currently we will discuss some of the concepts behind error detection, right? And basically there are rules of grammar and subject verb agreement on the basis of which these questions are made, right? So it says, ironically, the burden of ensuring that is upon none other than the police, who is required to be. Now अब ये सबको अभी तक पता होना चाहिए. अगर आप, if you are preparing for any exam, you must know that police is always what? Plural. जब हम बोलते हैं कि police is coming, that is wrong. Police are coming. ओके, पुलिस हमेशा आर यूज करता है, इट इज ऑलवेज प्लूरल. सो हु आर हमारा यहाँ पे करेक्ट यूसेज होगा. सो द एरर लाइज इन ऑप्शन सी. ओके, सो दीज आर द मोस्ट कन्वेंशनल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, और ये प्रीलिम्स में तो आ ही जाते हैं, मतलब ये आते ही हैं. यू विल सी समवेयर, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस, राइट? Now it says, besides the fact that the process is relatively simpler, अब हमने अभी डिस्कस किया था, जैसे ही कोई ये पढ़ लेगा किसी को पता चल जाएगा, अगर if you've been listening carefully, relatively मतलब comparison आ गया, right? तो अगर कंपैरिजन आपने पहले ही डाल दिया तो आप सिंपल बोलेंगे, आप सिंपलर नहीं बोलेंगे. या तो आप रिलेटिवली सिंपल बोलेंगे या आप सिंपलर बोलेंगे. ओके, सो हियर द एरर लाइज इन पार्ट बी. ऑलराइट, सो आप बी को एज योर आंसर मार्क कर देंगे, राइट? नाउ मूविंग अहेड, इट सेज, बट रिपीटेड साइकिल्स ऑफ इलेक्शंस हैव अलाउड फॉर अ कोहेशन in this process, with voters allowed to registered based on proof of their age and current place of residence, right? So जब यहाँ बात हो रही है, किस चीज की बात हुई है कि इनको प्रूफ इनसे लिए हैं, कौन से, मतलब उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज प्रूफ एंड देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस प्रूफ ये लोग रजिस्टर कर रहे हैं वोटर्स को. तो ये क्या है, दो प्रूफ हैं, दो मतलब प्लूरल है, तो ये प्रूफ गलत है, शुड बी प्रूफ्स, दो प्रूफ्स हैं, राइट? सो सी में जो है एरर है, यू विल मार्क सी एज योर आंसर, राइट? अब आगे देखिए, यहाँ बोला है, ही हैड लेड द कैंपेन एंड ही टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द फेलियर बट ऑल्सो फेल्ट let down by party seniors whom he thought did not fight the election with their mind and soul. अब यहाँ पे क्या होगा, गलती कहाँ है, whom he thought, तो whom is incorrect, it should be who he thought. ओके, ऑब्जेक्ट फॉर्म जो है वो गलत है यहाँ पे नॉमिनेटिव फॉर्म यूज होगा, who यूज होगा, ठीक है? अब इसको हम वेरीफाई कैसे करते हैं कि whom सही है कि who सही है? अब आप इसको बोलो, थोड़ा रीअरेंज करो, he thought they did not fight the election, ऐसे बोलेगा ना वो, he thought they did not fight, तो they अगर यहाँ पे लग गया तो मतलब कि who लगेगा. अगर them आ रहा होता तो आप यहाँ पर whom आपका सही होता, ठीक है? तो ये आपको देखना है कि जब सेंटेंस थोड़ा रीअरेंज करके या कोई क्वेश्चन है उसको आंसर करके अगर आप ऐसा निकाल सकते हैं कि जब आपने रीअरेंज करा तो आपको लगा कि अगर नॉमिनेटिव फॉर्म यूज हुई है तो यहाँ पे whom करेक्ट है, अगर ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज हुई है तो यहाँ पर who करेक्ट है, ठीक है? सो इस तरह हम वेरीफाई करते हैं. यहाँ पर आंसर 3 हमारा सही है. ओके, नाउ moving ahead, it says the Internet Freedom Foundation has cited data to show that self-reported errors
in the Aadhaar database are higher than that in the electoral database. So यहाँ पे क्या है, अब आप पढ़ेंगे आपको लगेगा ठीक है, ये तो मतलब इतना कुछ गड़बड़ लग नहीं रहा है, बट जब आप ध्यान से पढ़ेंगे, पॉज करके एक बार दोबारा पढ़ें, एरर है इसमें. और एरर कहाँ है? इट सेज Internet Freedom Foundation has cited data to show that self-reported errors in the Aadhaar database are higher than that in. अब that किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए यूज होता है. That bat, that ball सिंगुलर के लिए यूज होता है. प्लूरल के लिए क्या यूज होगा? Those. ठीक है, और यहाँ पे प्लूरल क्या है? ये पॉइंट किसको कर रहा है? एरर्स के लिए. ओके, सेल्फ रिपोर्टेड एरर्स के लिए पॉइंट आउट कर रहा है इन एरर्स को. तो ये क्या है? प्लूरल. तो यहाँ पे दोज यूज होगा. करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन 4D. ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक केयर ऑफ कि कोई भी प्रोनाउन है, इट शुड ऑलवेज अग्री विद द एंटीसीडेंट. ठीक है, या जिसको वो पॉइंट कर रहा है उसको अग्री करना चाहिए. ठीक है. Now next one is, the third is a proactive safety net which acts like a launch pad so that those who fall on it will not only bounce back but will move up beyond line 1. अब देखिए, अब आप दोबारा पढ़ेंगे, आपको लगेगा नो दिस इज करेक्ट, राइट? ऐसे ही क्वेश्चंस यू विल गेट इन एग्जाम. ये बात आप याद रखें, आपको एग्जाम में यू विल गेट दीज क्वेश्चंस विच लुक करेक्ट. They appear to be correct, but they are actually wrong. वो आपको लगेगा कि एकदम सही है ये, इसमें तो कोई गलती ही नहीं है, तो ई मार्क करेंगे आप और चल देंगे. या आपको लगेगा कि नहीं कुछ तो होगा, कुछ भी रैंडमली गलत मार्क कर देंगे और आप आगे चले जाएंगे. नो, इन सबके पीछे लॉजिक है. लॉजिक क्या है? यहाँ पे बोल रहे हैं द थर्ड इज अ प्रोएक्टिव सेफ्टी नेट विच एक्ट्स लाइक अ लॉन्च पैड सो दैट दोज हु फॉल ऑन इट will not only bounce back but also. यहां पे आएगा आपका but also. जब भी आप, जैसे हमें पता है, either यूज करेंगे और आएगा ही आएगा, neither यूज करेंगे nor आएगा ही आएगा. ये आपके रूल्स हैं, राइट? ऐसे ही अगर आप not only यूज करेंगे but also आएगा ही आएगा. टेक केयर ऑफ दिस थिंग. नॉट ओनली बट ऑल्सो. ठीक है. स्कार्सली यूज करेंगे, क्या आएगा? स्कार्सली के साथ वो आपको बट लिख के दे देंगे, दैट इज इनकरेक्ट. वेन, स्कार्सली के साथ वेन आता है. तो ये सब चीजें आप याद रखें. दीज आर फॉर योर एग्जाम एंड इट विल अपीयर क्वेश्चन एकदम सही है, बट एक्चुअली ये आपको पता होगा ना, यू विल नो इमीडिएटली नहीं ये क्वेश्चन गलत नहीं है. नॉट ओनली बट ऑल्सो, आपका दिमाग पहले ही चलेगा. नॉट ओनली आ गया, ओके, अब बट ऑल्सो आना चाहिए. ओके, ऑल्सो नहीं है, दिस इज द एरर. ओके, लाइक दिस. इस तरह हम एग्जाम में अप्रोच करते हैं क्वेश्चंस को, राइट? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर. आगे चलें. Okay, so it struck to me suddenly that we in Mumbai see the sea as a backdrop and not as a living world filled with creatures that are our neighbors. So इस वाले में it is not marked, differentiation नहीं हो रखा है, but error is just in the starting. ऐसे नहीं बोलते हैं. it struck to me जो है वो गलत है. कभी भी कुछ words होते हैं जैसे struck हो गया, अवॉइड हो गया, स्टॉप हो गया. ओके, स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दिस थिंग ऐसे बोलते हैं. स्टॉप टू मी ऐसे नहीं बोलते हैं. ठीक है. अवॉइड टू मी नहीं बोलते हैं. ठीक है. तो ऐसे ही स्ट्रक टू मी नहीं बोलते हैं. इट स्ट्रक मी. सो यूसेज ऑफ टू इज इनकरेक्ट हियर. ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, राइट? आगे देखें. द रेमिशन वॉज बेस्ड ऑन अ डायरेक्शन from a 2-judge bench of the Supreme Court on a petition by one of the convict. अब अभी तक आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे एरर क्या है, क्योंकि अभी हमने ये डिस्कस किया है कि वन ऑफ द अगर होगा वो हमेशा यहाँ पे प्लूरल नाउन लेगा, राइट? तो क्या लेगा? कॉन्विक्ट्स. ओके, सो वन ऑफ द के साथ हमेशा प्लूरल आएगा. इसको तो आप याद ही रखें. हाँ, जो आपका वर्ब है वो आपका डिपेंड कर सकता है. इफ योर वर्ब इज पॉइंटिंग टू वन, ठीक है, तो वो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा. ठीक है. तो मतलब अगर आपका सेंटेंस वन से स्टार्ट होता है,
ओके तो आप सिंगुलर यूज करते हैं वन ऑफ द के केस में, वन ऑफ द, तो इसके केस में आप सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं इफ योर सेंटेंस इज नॉट स्टार्टिंग विद वन ऑफ द बीच में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आ गया किरण इज वन ऑफ द, फिर यहाँ पे क्योंकि ऑब्वियसली आप यहाँ पे प्लूरल यूज करेंगे गर्ल्स, ठीक है, फिर यहाँ जो वर्ब होगा वो आपका सॉरी इस पे नहीं, यहाँ पे पॉइंट करेगा, जो दोज या कोई भी प्रोनाउन होगा उसको पॉइंट करेगा, इसलिए ये प्लूरल हो जाएगा। ओके, दिस विल बी प्लूरल। सो वन ऑफ द स्टार्टिंग में आएगा आप सिंगुलर यूज करेंगे, वन ऑफ द बीच में आएगा आप प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, और नाउन वन ऑफ द के साथ आप हमेशा प्लूरल यूज करेंगे। ओके, ये बात आप याद रखें। सो हियर द एरर लाइज इन ऑप्शन डी। ओके, सो वी विल मार्क डी एज आवर आंसर। Okay, moving on to the next question. It says humanitarian considerations as well as the scope for reform of the offenders and their sense of remorse informs the contours of a national remission policy. ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया। अब जैसे ही हमने देखा it says कि जो आपका यहाँ पे पहले सबसे पहले देखिए आप एरर फाइंड कैसे करेंगे। जो आपका वर्ब है पहले देखिए वो सब्जेक्ट से वो कर रहा है, अग्री कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस एज वेल एज द स्कोप फॉर रिफॉर्म ऑफ ऑफेंडर्स एंड देयर रिमोर्स सेंस ऑफ रिमोर्स इन्फॉर्म्स द कॉन्टूर्स, राइट। सो अब यहाँ पे क्या है, जब भी कभी हम ऐसे बात करेंगे रिफॉर्म ऑफ द ऑफेंडर्स एंड देयर सेंस ऑफ रिमोर्स इन्फॉर्म द कॉन्टूर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्म्स क्या हो गया, दिस इज योर सिंगुलर, ठीक है, बट ये पॉइंट कहाँ कर रहा है, ये ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस को पॉइंट कर रहा है जो कि है प्लूरल, ठीक है। सो अगर क्योंकि कभी हम पढ़ते हैं हमें लगता है ठीक है सेंस ऑफ रिमोर्स इन्फॉर्म्स, बट सेंस ऑफ रिमोर्स के लिए नहीं है ये वर्ब है आपका ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस के लिए, राइट। यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस जो है दैट इज योर सब्जेक्ट एंड दैट इज प्लूरल एज वेल एज या टुगेदर विद। अगर ये सब ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं टुगेदर विद, अलोंग विद, ठीक है, इन एडिशन टू, इन सब पे आप ये ध्यान रखें कि इन सब वर्ड्स के बाद कुछ भी आ रहा है इससे पहले क्या है ये मैटर करेगा। अगर इससे पहले सिंगुलर है आपका वर्ब सिंगुलर होगा, इससे पहले प्लूरल है आपका वर्ब प्लूरल होगा। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, सो आई विल रिपीट इन इंग्लिश। whenever words like together with, along with, in addition to, as well as, these words are used in a sentence, then whenever we decide the verb, what matters is what is placed before such words, right? If it is in singular form, then you will use a singular verb, and if it is in plural form, then you will use a plural verb. Okay, so this thing you have to take care of, right? So here the error lies in option C. We will mark 3 as our answer, right? So friends, we have discussed so many rules here, और आपको ये rules आने चाहिए. We will come up with more such questions so that आप और practice कर पाओ. बट अभी just note down all these rules. These are very very important. इन सबको आप पढ़ो और आपको काफी हेल्प मिलेगी अपने एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में, राइट? अब आगे आके देखें. There is this another pattern as I had promised कि new pattern questions I will show you. तो यहाँ पे ये दूसरा पैटर्न है और आजकल ये आपके recently IBPS आई थिंक प्रिलिम्स में दिस वन केम, और ऑल्सो ये आपके स्पेशलिस्ट ऑफिसर में आपका आया हुआ है, नाबार्ड में आया हुआ है, RBI में आया हुआ है. ये पैटर्न आपका बहुत आता है when your 3 statements are given 1 2 3 and then you are asked कि इन तीनों में से आपको फाइंड करना है which one is incorrect का कॉम्बिनेशन. कभी करेक्ट दे सकते हैं. They can either ask you to find the combination of incorrect sentences or the combination of correct sentences. So you have to read the directions very very carefully.
दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखना है कि पूछा क्या गया है और उसके बेसिस पे यू हैव टू सेलेक्ट द आंसर्स. एंड ऑल्सो फ्रेंड्स, व्हेन वी आर इन द एग्जाम हॉल, हमारा थोड़ा मेंटल स्टेट जो है थोड़ा डिफरेंट होता है. बट हमें एकदम काम रहना है. ये क्वेश्चंस स्टूडेंट्स मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स. ठीक है, गलत आंसर चूज कर देते हैं. दे मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड आई कीप ऑन टेलिंग अगेन इन माई क्लास ऑल्सो कि इन क्वेश्चंस को कैसे आपको अप्रोच करना है और कौन से क्या डाउट आ जाए तब इन क्वेश्चंस को स्किप कर दो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमें लग रहा है कि नहीं मैं कैसे, ये तो मैं तो इंग्लिश में इतना अच्छा हूं या इतनी अच्छी हूं, मैं कैसे कोई भी क्वेश्चन स्किप कर दूं. नो, डोंट, बिकॉज वी हैव टू बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट. हमें अपने मार्क्स अच्छे लाने हैं, कट ऑफ क्लियर करनी है, अपना टोटल पुल करना है. वी डोंट हैव टू थिंक कि नहीं मुझे तो आता ही है. और कभी कभी हम सेल्फ डाउट में भी रह जाते हैं. कभी एक दूसरी कैटेगरी भी होती है जिसमें स्टूडेंट्स को लगता है ओके मे बी मुझे गलत पता है एंड जो इसमें तो एरर होगा ही होगा, देन दे मार्क ओनली 1 की जगह 1 and 3 मार्क कर देंगे. लाइक दैट. हालांकि एरर केवल 1 में होगा. लाइक दैट कि हमें लगता है कि देखने में लगता है मे बी देयर इज एन एरर. अनलेस यू आर श्योर ऑफ द एरर, डोंट मार्क. ओके, सो दीज आर वन काइंड ऑफ क्वेश्चंस. जब मैं स्टूडेंट्स को फर्स्ट आई टीच दैट सॉल्व इन दिस वे, बट देन द स्टूडेंट हैज टू डिसाइड इन द एग्जाम ऑल्सो. अगर आपको लग रहा है कि एग्जाम टाइम में यू आर नॉट एबल टू रीच टू अ कॉन्क्रीट आंसर, स्किप दीज क्वेश्चंस. ओके, कॉम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चन स्किप कर दीजिए. ठीक है, बट चलिए ये वाला अभी हम डिस्कस करते हैं. इट सेज पहला कह रहा है द फैमिली इटसेल्फ इज लीडिंग द सर्च फॉर द रिप्लेसमेंट. राइट, सो जैसे ही हम देखें इटसेल्फ क्या हुआ, इटसेल्फ इज पॉइंटिंग टू फैमिली. तो क्योंकि फैमिली पूरा ही इकट्ठे काम कर रही है, सो इट इज करेक्ट. मैंने कहा था कमिटी की जैसे कमिटी है, अगर इफ पीपल आर एक्टिंग एज वन यूनिट आप उसको सिंगुलर कंसिडर करते हैं, एंड इफ दे आर एक्टिंग एज इंडिविजुअल यूनिट्स तो आप उसको एज प्लूरल कंसिडर करते हैं. सो यस, जब फैमिली की बात है इट इज सिंगल यूनिट, तो इट सेल्फ इज करेक्ट यूसेज, 1 इज करेक्ट. नेक्स्ट, द एब्सेंस ऑफ data protection laws heighten the risk of this possibility as well. heighten जो है ये आपका verb है और आपका subject क्या है, absence. ओके, absence क्या है, सिंगुलर. तो ये क्या होना चाहिए, हाइटेंस सिंगुलर. ओके, इस चीज का ध्यान रखें. वर्ब के आगे अगर आप एस लगा देते हैं इट बिकम सिंगुलर. सो द एब्सेंस ऑफ डेटा प्रोटेक्शन लॉज हाइटेंस द रिस्क ऑफ दिस पॉसिबिलिटी. दिस इज इनकरेक्ट. Scholars studying elections in various countries have averred that effectiveness of constitutional institutions such as the ECI have gone a long way. दोबारा पढ़िए, ये क्या कह रहा है, effectiveness की बात हो रही है. That effectiveness of constitutional institutions such as the ECI has gone. Okay? तो यहाँ पे हैज गॉन हो जाएगा. इफेक्टिवनेस आपका सिंगुलर है, राइट, सो हैज, सो एरर लाइज इन 3 ऑल्सो. तो 2 and 3 कहाँ है आपका, बी. सो दिस इज हाउ यू विल प्रोसीड विद दीज क्वेश्चंस इन योर एग्जाम. एंड फ्रेंड्स लेट मी टेल यू, ये बहुत आते हैं, दीज क्वेश्चंस आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं. आपके IBPS प्रीलिम्स आई थिंक आए थे ये वाले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपके प्रीलिम्स में आए थे और आपके RBI में आए थे. दीज एग्जैक्ट क्वेश्चंस वर देयर इन RBI. तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करें. डोंट इग्नोर दिस पैटर्न. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं आपके स्क्रीन पे लिख दूं, वेरी इंपॉर्टेंट. और ये आपको iExamB के मॉक्स में ऐसा बहुत मिलेगा और PYPs में तो बहुत ही, क्योंकि रिसेंटली बहुत एग्जाम्स में आए हैं, राइट. अब एक और पैटर्न है, वो ऐसा, सॉरी, इसमें आपको जो है पार्ट में डिवाइडेड है, बट देन 2 पार्ट्स में आपका एरर हो सकता है. तो आपको वो 2 पार्ट्स वाला देखना है कि किसमें एरर, किन 2 पार्ट्स में एरर है, राइट. तो अब इसको ध्यान से पढ़ना है आपने. इट सेज the Supreme Court batted strongly for more systemic protection to disabled and आगे क्या है, caste oppressed women, saying they lived under a constant threat of violence, both physical and sexual, that curtailed at their constitutionally guaranteed right to lead a full and एक्टिव लाइफ. अब आप जैसे आपने देखा
तो इट सेज, जो कर्टेल का मतलब क्या होता है? कर्टेल मतलब किसी चीज को रोकना, ठीक है। तो यहां होना चाहिए दैट curtailed देयर कॉन्स्टिट्यूशनली, और यहाँ पे क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट, ओके। और ये curtailed, एक्चुअली दिस curtailed इज करेक्ट, यहाँ क्वेश्चन में आपका curtail था, सो इट शुड बी दैट curtailed, और यहाँ पे at नहीं होना चाहिए, सॉरी, सो दिस इज द एरर, ठीक है। दैट curtailed at, सो आपका जो सॉरी at is incorrect, then you say that curtailed their constitutionally guaranteed right, okay. So the correct answer here is D and E, okay. तो curtailed at नहीं होता है, you say curtail their. तो यहाँ पे मैं इसको रब करूं, इरेजर, दिस इज द एरर, at नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ओके। Alright, so it should be that curtailed there, okay. चलिए आगे देखते हैं। In keeping with the traditions of dissent and debate of the 19th century Bengal Renaissance, Bengal stayed a bastion of intellect, ferment and liberal mindsets in the 20th century and way into the 21st, right? अब जब हमने ये पढ़ा, we know descend का क्या मतलब होता है, ये these are certain words, descend मतलब decrease, ठीक है। बट एक वर्ड होता है आपका descent, मतलब दिस डिसेंट मीन्स कि आप कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, आपकी ओरिजिन कहाँ का है। सो ट्रेडिशंस ऑफ डिसेंट इज द करेक्ट यूसेज हियर। सो ए में तो एरर है, तो सीधा हम ऑप्शंस में आएंगे, ए कहाँ है, इधर और इधर, सी में है कि डी में है, वी हैव टू सी दैट। एंड डिबेट of the 19th century Bengal Renaissance, Bengal stayed a bastion of intellect ferment, तो intellect ferment नहीं होना चाहिए, intellectual ferment होना चाहिए, ठीक है। So the error lies here in D, it should be fourth is the correct answer here, right? So हमेशा नहीं है कि आपके errors जो होंगे rules of grammar में based होंगे, कुछ हो सकता है कि आपका noun की जगह verb यूज कर दिया, adjective यूज कर दिया, उस तरह से you must know कि कैसे उसको correct करना है, right? And also usage of similar sounding words, right? जैसे यहाँ पे descend कर दिया, वहां पे descent होना चाहिए, right? इसमें भी students कभी कभी पकड़ नहीं पाते हैं, right? गलती, so take care of this. Now our next question, the Prime Minister lauded the large number of elderly who have stepped on to get what vaccinated. अब जैसे ही हमने पढ़ा, हमें पता है कि step on someone क्या होता है, कि किसी को या तो आप फिजिकली किसी चीज पे स्टेप कर रहे हैं, या अगर आप किसी इंसान पे स्टेप कर रहे हैं, आप बोलते हैं कि स्टेप ऑन समवन मीन्स यू आर नॉट ट्रीटिंग समवन वेरी फेयरली, राइट? तो इस तरह ये यूज होता है। अब स्टेप ऑन इज इनकरेक्ट फ्रेजल वर्ब, ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप ऑन नहीं यूज होगा, स्टेप अप यूज होगा। स्टेप अप मीन्स कि उसको बेटर करने के लिए काम किया। सो स्टेप्ड अप टू गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द कोरोना वायरस एंड ऑल्सो स्पोक ऑन द नीड फॉर मॉडर्नाइजेशन of the agricultural sector, emphasis that, अब emphasis is incorrect, यहाँ पे क्या होगा, emphasizing, ठीक है। अब जब वो लॉर्ड कर रहे हैं तो वो आगे आके क्या करेंगे, वो emphasize करेंगे। So he also emphasized on or emphasizing that adopting modern practices so and so. So here the error lies in B and D. Option 4 is our correct answer here, right? तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है कि किस किस तरह से आपके एरर्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर हियर। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग and we'll again come with such questions, and I hope you have learned something today, and we'll continue to bring such more such sessions for you, but the key is कि आप इससे maximum benefit derive करें, और वो कैसे करेंगे, जब आप practice करेंगे। So next time come prepared with some of the
रूल्स उसको पढ़कर आइए एंड एग्जाम बी पे जो जो मॉक्स हैं उनको जरूर लगाएं. इट विल बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू. थैंक्स फ्रेंड्स. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज डू और बेल आइकन जरूर दबाएं सो दैट यू नो कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने हैं और कुछ भी रिलेटेड नोटिफिकेशन होगा आपको तुरंत रिसीव हो जाएगा.